Okay. So first, look here. आ रहा, याद रखना बेटा, मुझे सब पता चलेगा, है ना। और एक दो बार मैं चांस दूंगा, फिर क्लास से रिमूव कर दूंगा। और ये कोई इसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही कि बाद में आप देख सको। ओके, सर नाउ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन ये अपलोड नहीं होगा ना वीडियो में आपका, आप नहीं देख पाओगे इसे। इसलिए अटेंडेंस आपका कंपलसरी है, आओगे तभी पता चलेगा, नहीं आओगे तो फिर हम क्या पढ़ाएं आपको कभी पता नहीं चलेगा, है ना। दूसरा, कुछ भी स्क्रीन पे अगर आप लिखते हो विदाउट परमिशन, आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। फिर आप कहीं भी फोन लगाओ, कुछ भी कर लो, आप क्लास में फिर नहीं कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट अब आप ले लो, ये नंबर लाइन में नेचुरल नंबर लो, है ना। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 2 3 and infinite. and infinite. Infinite. So this one is a natural number. This one is a Natural number. नेचुरल नंबर। number. सर और जीरो से होल नंबर। Okay. Now this one is a 0. So 0 plus natural number will become whole number. होल नंबर। 0 plus natural number will become whole number. होल नंबर। होल नंबर। Now you have to write negative of natural number. -1 to infinite। Negative माइनस of natural number. So negative of natural number means this is a 1. So negative of 1 is what? -1 -1। This one is a 2. So negative of -2 -2। -3 Then -4 -3 infinite. -5 4 infinite minus -3 -4 4 then infinite। infinite. Now we are going to combine this one. We are going to combine this one. Look here, we are going to combine this one. So after combination of negative of natural number plus 0 plus natural number, so this will become what? This is integer. Real integers। integers. So integers means all natural numbers are also integers. All whole And all are are also integers. integers, and all negative of natural number are also integers. Integers। So is it clear for all? Yes sir। Now what about rational number? What about rational number means what? Rational number means what? Rational number, Any fraction then yes, 0 is not denominator। actually rational number means it is a ratio of two integers. It is a ratio of two integers. Suppose that this one is p and this one is a q. So p is also a integers, p is also a integers, and q is also a integers. But condition is that q is not equal to 0. Means rational number is a ratio of two integers where denominator is not equal to 0. So that number is known as rational number. For example, 4 upon 5. Look here. So 4 is a integers. Okay. Now 5 is also a Integer। 5 is also a integers. Integer। Oh. सर स्क्रीन शेयर Yes. सर स्क्रीन नहीं दिख गई सर। 4 is integers, 5 is integers. So now
rational number means it is a ratio of two integers, so that's why it is also a rational number. It is also a rational number. Is it clear for all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, second example, look here. So rational means what? Rational means P and ratio of two integers. Ratio of P Q. Ratio of two integers where denominator will not equal to 0. Where denominator will not equal to 0. So suppose that example is 5 upon 8. So 5 upon 8 means, look here, 5 is also integers. Okay. And now 8 is a 8 is a integers, and 8 it is not equal to 0. Okay, so this one is also integers, and this one is a rational number. Number. Clear है बेटा ये? Yes, sir. Okay, next example देखो. अब आपके लिए rational number में मैं ये बोलूँ 0. We have to write this. 0 upon 5. So whether it is a rational number or not. Excuse me, sir. Yes. Sir, we have to write this. You may write. आप लिख सकते हो. मैं इसका notes आपको send कर दूंगा. Yes, sir. सर बेस्ट बडीज में सेंड करोगे ना? आप सभी स्टूडेंट्स हो उसमें? No, sir, I am not there. तो Sir, only new students are not there. एडमिन को नंबर देने बोल दो. चलो ठीक है. मुझे Sir, I am also not there. Okay. Now come to the topic 0 upon 5. My question is whether 0 upon 5 is a rational number or not. No, yes, sir, it is a rational number. Rational number. So now first look what is the definition of rational number. Okay, rational numbers means what? It is a ratio of Two integers in which denominator is not 0. ratio of Not two integers. 0. Means this one is a integer and this one is also a integers, but denominator Not not 0. equal to Denominator is not equal to 0. So now look here, 0. So 0 is also a integers. 0 is also a integers. Is there any doubt? क्या आपको डाउट है 0 में? No, sir. Yes, sir. आप याद करो, वो नंबर लाइन को याद करो. इंटीजर्स क्या था बेटा? आपका 0 था. 0 के बाद आपका ये क्या था? 1 2 3 Infinite. और उसके बाद आपका इधर क्या था? -1 -2 -3 है ना. तो ये सारे के सारे जो मिल करके क्या बनाए थे आपको याद है? आपको Integers. इंटीजर्स. तो अभी ये मैं 0 जो बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये 0 को देखो, ये 0 आपका यहाँ इंटीजर्स है कि नहीं है ना? ये इंटीजर्स है Yes, ना. sir. तो जब ये आपका इंटीजर्स हो गया, अब आपका डिनोमिनेटर में अब ये जो डिनोमिनेटर हो बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए. तो जब 0 नहीं होना चाहिए मीन्स ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो ये जो 5 है, एक्चुअली 5 आपका क्या है? 0 तो नहीं है. Integer. So ये integers है. So this one is a rational number. So this one is a rational number. Clear है? Yes, sir. अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो बेटा. आप सिंपलेस्ट फॉर्म देखो. सिंपलेस्ट फॉर्म में अब आप
म्यूट कर लो, है ना। Sir, screen share. आप देखो 0/5 मीन्स 0/5 मीन्स व्हाट? 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा? 0. और 0 आपका क्या है? रैशनल नंबर ही है। 0 इट इज ऑल्सो ए Rational number because denominator is 1. डिनोमिनेटर इज 1. 1. So second question is second question is 15/3. So whether it is a rational number or not? It Sir, is. it is. It is a rational It number. is. Very good. Why? Because 15 is a integer. 15 is a And 3 is not 0. and 3 Is not. is not a 0. And it 0. is a integer. So this one is a rational. Rational number. So any doubt regarding rational number? No, sir. No, sir. So rational number means what? Rational number. This one is 1 minute. Ratio of two integers. Wait. Denominator is not a Look 0. here. Okay. Look here. It is your syllabus of content of first chapter. It is a content of your first chapter. First chapter. Rational number. Okay. This one is a chapter 1. Chapter 1 means introduction. Introduction means what? Introduction means you have to know what do you mean by natural number, what do you mean by whole number, okay? And after that, what do you mean by integers? And after that, what is rational number? Is it clear for all? आप लोग रिप्लाई Yes, sir. है ना। आपका जो Yes, sir. रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर आप तभी समझ पाओगे, ये जो रैशनल नंबर है ना, आप इस रैशनल नंबर को तब समझ पाओगे जब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। क्योंकि इंटीजर्स अगर आपको पता होगा तभी आप रैशनल नंबर जान पाओगे ना। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर एक्चुअली में दो इंटीजर्स का रेशियो होता है। दो इंटीजर्स का क्या होता है? रेशियो होता है। क्लियर है बेटा? Ratio. Yes, sir. Very clear. Okay, now second है property of rational number. Excuse me, sir. Yes. Sir, you can send this notes on WhatsApp group class 8. Yes, I will send both in WhatsApp group also in portal. Okay. लेकिन अभी आपको पहले देखना है, समझना है। चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब आपको नोट सेंड करेंगे। आप उसे अपने हैंड रिटन में कॉपी में लिखना, वापस मुझे सेंड करना ताकि मैं चेक कर लूँ। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आपका नोट्स देखो रेडी हो रहा है। अब प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा आपका? होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे के सारे कंटेंट है ना। तो कंटेंट आप देख लेना। फर्स्ट आप देखो इसमें आपके क्या है? रैशनल नंबर पे। अब आप इस फिगर पे अब आप आओ। स्क्रीन क्लियर है सभी के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is rational number? So rational number means a number is called rational if it can be expressed in the form of P by Q. P by Q means what? It is a ratio of two integers. Any number upon number. Any number means any number, no any number. Any number में आपका क्या क्या आ सकता है? Integers, sir. आपका Integers. डेसिमल भी आ सकता है ना। तो डेसिमल नहीं आएगा ना Yes. बेटा। Integers. आपका Integers. √2 भी आ सकता है, वो भी एनी नंबर है तो वो नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि P by Q का मतलब क्या होगा? ओनली इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। Integers. इंटीजर्स। सो
A number is called rational if it can be expressed in the form of p by q, means ratio of two integers where p and q are integers and q देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है q is greater than 0, q is greater than 0, तो 0 से ग्रेटर क्या होगा आपका 1 2 1. कुछ भी हो सकता है, ठीक Sir, है। but it's not, I think it's not correct because it can be -1 also. Not greater than 0. p and q are integers and q is greater than 0, actually आपका क्या होना है कि डिनोमिनेटर q should not equal to 0, q should not Yes, sir, this is wrong. not wrong बेटा, -1 is less than 0, -1 अगर Yes, आप sir, it's less than 0, and here, what is written that q -1 is greater less than 0. yes, और आपका So यहाँ denominator can be -1 also, na? -1 may be, but आपको according to definition denominator also greater than 0 or not equal to 0. So greater than 0 means what? आपका 0 से greater क्या क्या हो सकता है? 0 से greater आपका सिर्फ 1 होगा, 2 होगा and going so on. अगर आप -1 बोल रहे हो तो -1 तो ये स्मॉलर हो जाएगा ना 0 से, ठीक है? Yes, sir, तो मतलब वो नहीं आ Yes, सकता sir. उसमें, नहीं, देखो डिनोमिनेटर में -1 नहीं आ सकता. देखो यहाँ जो ये जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअली इसको हम चेंज कर देंगे। ये जो डेफिनेशन है इसमें सिर्फ ये होगा कि q is not equal to 0 होगा, क्या होगा? Yes, sir, that's what I was saying. q is not equal to 0, clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. ओके, अब आप लोग इस फिगर में, अब आप बेटा इस फिगर में so now look here first. Natural number, this one is a natural number. अब इस नेचुरल नंबर पे, इस जब नेचुरल नंबर पे जब आप ऐड करोगे, इस नेचुरल नंबर पे जब आप ऐड कर रहे हो कि इसको 0 को, जब आप ये 0 को ऐड करोगे तो ये क्या होगा आपका होल नंबर। और नेचुरल नंबर और होल नंबर में जब आप ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हो तो ये क्या होगा आपका इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद में जो रैशनल नंबर है, एक्चुअली रैशनल नंबर में हम लोग कितने टर्म को यूज कर रहे हैं बता सकते हो क्या? रैशनल नंबर में एक आपका होगा न्यूमरेटर और एक होगा आपका क्या? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? इंटीजर्स होगा। न्यूमरेटर क्या होगा आपका? इंटीजर्स। और डिनोमिनेटर भी क्या होगा आपका? इंटीजर्स होगा। इंटीजर, इसमें लेकिन 0 नहीं हो सकता। इसमें कंडीशन है कि 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर है आपका ये? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट देखो। अब आप नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स मींस इंट्रोडक्शन में ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, मींस 1 1 2 3 4 and 1 to infinite. सो ऑन, है ना। अब ये बता बेटा, कहीं कहीं हमारा नेचुरल नंबर है और इसको कहीं कहीं हम ये क्या बोले, एक टर्म यूज किया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ऐसा क्यों बोला गया है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? Sir, because all the integers in natural numbers are positive. एक्चुअली अगर आप इंटीजर्स को देखोगे, इंटीजर्स को देखोगे ना तो ये 3 टर्म में आ रहा है बेटा आपका। क्या क्या आ रहा है हम बता रहे हैं आपका। 0, negative and positive. ये जो आपका नेचुरल नंबर है, मेरे बैग में कब से पड़ा हुआ है, कितने ही महीनों से। ऋषभ चोपड़ा, ऋषभ, so natural number always starts from 1 2 3 go and going so on, and this one is a positive, this one is a positive. अब सेकंड में आपका आ गया क्या? 0, तो 0 आपका क्या है? ये ना तो पॉजिटिव है ना, और न ही ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। और सेकंड में आपका आ रहा है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मींस -1 -2 एक्सेट्रा, ये आपका क्या आ गया? निगेटिव। तो इनका सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया बेटा? इंटीजर्स। अब इसमें इंटीजर्स आपका क्या क्या आ सकता है? देखो इंटीजर्स आपका क्या क्या आ सकता है।
फर्स्ट आपका इंटीजर्स आ सकता है ये आपका इंटीजर्स मींस क्या आ रहा है आपका नेगेटिव नंबर, जो कि क्या है, सॉरी नेचुरल नंबर, जो कि क्या आपका पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स मींस क्या होगा आपका 1 2 3 4 एंड गोइंग सो ऑन, और जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। समझ पा रहे हो या नहीं, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. समझ रहे हो ना। नेचुरल नंबर को कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जा रहा है, उसका रीजन समझो, फिर से बता दूं। यस सर, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि -1 से। ओके देखो, इंटीजर्स में आपका क्यों आ रहा है टर्म, वो देख लो पहले। आपका इंटीजर्स में 3 टर्म कैसा आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है बेटा, सबसे पहले वो 0 उसमें ऐड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। हाँ, फिर नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 भी ऐड हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है -1 और -2 भी ऐड हो रहा है ना। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो हमारा कौन सा नंबर हो गया बताओ, ये तो पॉजिटिव हो गया ना। हाँ, यस सर। जब पॉजिटिव हो गया तो इसी पॉजिटिव को कहीं कहीं पे बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी पॉजिटिव को क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव नंबर है, इसी नेगेटिव नंबर को कहीं कहीं हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर। इंटीजर्स। तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ -1 -2 मतलब जो भी नेगेटिव वाले हैं उसको हमको ऐड करना है। अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे, ये पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में सिर्फ जो नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर आ रहा है 1 2 3 4, जैसे यहाँ 1 2 3 4, सिर्फ इसे ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को। No, नो sir. सर। नो सर। ओके। अब सेकेंड है आपका होल नंबर। होल नंबर तो आपको मालूम है ना कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर में, ये आपका नेचुरल नंबर में Plus 0. अगर हम लोग 0 ऐड कर दो तो ये क्या होगा हमारा, होल नंबर। Whole number. सो क्या लिखा है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल होल नंबर। नंबर। ओके। और नेक्स्ट आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपका क्या लिखा है, देखो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो आपको मैं पहले कई बार आपको बताया हूँ कि इंटीजर्स में आपका क्या क्या नंबर इंक्लूड हो रहा है, ये नेगेटिव भी इंक्लूड हो रहा है, दूसरा आपका और 0 0 और पॉजिटिव। 0 and positive. और दूसरा आपका पॉजिटिव भी हो रहा है। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देने की बात है, इंटीजर्स में अगर मैं आपको ये बोलूं, जी या क्या कर रहे हो बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5/4, सो वेदर 5/4 इज ए इंटीजर और नॉट, ये बताओ। No, sir. वेरी गुड, सो इट इज नॉट इंटीजर, बट व्हाई सर 5? बिकॉज इट इज रैशनल नंबर। 5 is integer, 4 is integer, but 5/4 is not integer. I need your justification why 5/4 is not considered as a integer. Because because it is a fraction. Very good. And किसका fractions or decimals are not considered as an integer. वेरी गुड, integer. वेरी गुड। किसका रिप्लाई आया ये? सर सर पार्ट्स। पहले पार्श्व फिर मैंने बताया। ओके, पार्स और मौलिक, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया बेटा। इंटीजर्स का ये Thank you, sir. कंडीशन है, इंटीजर्स का ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इंटीजर्स में कोई भी फ्रैक्शन और कोई भी डेसिमल हमारा इंटीजर्स में कंसीडर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि 5/4 इज ए फ्रैक्शन नंबर। 5/4 इज ए फ्रैक्शन नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए इंटीजर। अगेन मैं अगर बोलूं 0.8, तो 0.8 वेदर इट इज इंटीजर और नॉट? No, sir, No, it's not. sir. सर बिकॉज sir. इट इज डेसिमल। Yes, sir, Very because good. it's decimal. Very good. So because it is a decimal and we know that fractions and decimals And are decimal do not come in integers. don't come in integers. Very good. Integers. Okay बेटा, अब आप देखो, म्यूट कर लो किसके यहाँ से सर आवाज है। कहीं से कुछ आवाज आ रही थी अभी। Yes, sir, थोड़ी थोड़ी. वेदांत से। ओके देखो, अगर आप डिस्टर्ब, सुनो, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो ये जो नोट्स देख रहे हो, ये नोट्स में सर बाय मिस्टेक ऑन हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कंडीशन देखो। मेरी कंडीशन ये है कि अगर आप लाइव क्लास में डिस्टर्ब करोगे तो वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे तो अपलोड नहीं करूंगा, साथ ही साथ ये जो नोट्स बनाया हूँ उसे भी सेंड नहीं करूंगा। फिर आप अपने से कैसे लिखोगे नोट्स आप समझ लेना। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे
तो आपको मैं नोट्स भी दूंगा और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर वुड यू लाइक टू गेट नोट्स और नॉट। अगर आप नोट्स चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग, ये बताओ। Right, sir. Right, sir. Right, sir. ओके, तो आपका नेचुरल नंबर क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. होल नंबर क्लियर हो गया? Yes, sir. इंटीजर्स क्लियर Yes, हो sir. गया? Yes, Yes, sir. sir. और नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर। क्या है आपका? रैशनल नंबर। Rational number. रैशनल नंबर क्लियर हुआ? Yes, sir. So Yes, sir. rational number means it is a ratio of two integers where denominator Denominator is not equals to 0. is zero. Clear? So Yes, sir. okay, अब वापस हम लोग इस पे आओ। ऑपरेशन पे अब हम लोग आओ, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? एनीवन? यार हम लोग को नहीं पता। क्लोजर प्रॉपर्टी, एनीवन? Operation of any two same types of सर ने number. रीड करने नहीं बोला है। नहीं करो, कोई बात नहीं बेटा, रीड भी करो। अगर आप उसे अपने लैंग्वेज में समझा पाते हो तो समझाओ। सो क्लोजर प्रॉपर्टी मींस, चलो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना? अब क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में किसके लिए ले रहे हैं? होल नंबर्स के लिए ले रहे हैं। होल नंबर्स में अब आप क्या करो, 5 plus 10. Now 5 is a whole number or not? Tell me, 5 is a whole number? Yes, sir. Now again 10, whether it is a whole number or not? Yes, sir. Yes, sir. It is also a whole number. So आपका रिजल्ट क्या आ रहा है ये बताओ। 5 और 10 को जब आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है ये बताओ। Whole number. Sir, whole number 15. 15, तो 15 क्या है आपका? होल नंबर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. सर मतलब दो टाइप्स के नंबर को ऐड करने से वही टाइप का रिजल्ट मिलता है। ओके, अब आप इस लाइन को आप फिर से पढ़ो, है ना? आप इस लाइन को, They show that the operation of any two same types of numbers is also the same type of. so this shows that the operation of any two same types of number, same type of number means हम लोग दो होल नंबर को लिए, उसको ऐड किए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी में रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है बेटा? सेम है। ये क्या है आपका? सेम। सेम का मतलब अगर हम लोग दो कोई होल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा? होल नंबर आएगा। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. एक और एग्जांपल मैं देता हूँ Yes, आपको। sir. Sir, only addition or we can take minus or multiplication सुनो, also? आपका सारा होगा ऑपरेशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेशन? देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन: Four. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड Multiplication, division, addition, subtraction. so now for addition, look here, for addition, okay, for addition suppose that 6 plus 0, so दो नंबर है, 6 आपका होल नंबर और 0 भी होल नंबर है। इसे जब आप ऐड कर रहे हो, एक मिनट रुकना जरा आप, है ना? इससे मैं थोड़ा जूम कर लूं। ओके, देखो यहाँ ध्यान से बेटा, अभी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका हम लोग क्या लिए? नंबर, होल नंबर लिए। क्या लिए? नंबर, होल नंबर, है ना? एग्जांपल से समझो, अभी आपका जो 6 है वो क्या है? आपका होल नंबर है। और ये 0 वो भी क्या है? आपका होल नंबर है। अगर मैं दो होल नंबर को ऐड करूं तो ये जो रिजल्ट जो 6 आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? आपका होल नंबर आ रहा है। ये 6 भी क्या आ रहा है? आपका होल नंबर आ रहा है। इट मींस ये क्लोज है। क्लोज है मींस इसका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई दो होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा होल नंबर ही आएगा। क्लियर हुआ ये? तो एडिशन के लिए Yes, sir. एडिशन के लिए
होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी में पूछा जाएगा क्वेश्चन वेदर इट इज क्लोज और नॉट, तो आंसर क्या आएगा? क्लोज। क्या आएगा आंसर आपका? Closed. ओके, Closed. नेक्स्ट है आपका Subtraction. वेट करो थोड़ा। सब्ट्रैक्शन में आप आओ, है ना। सब्ट्रैक्शन में मान लो मैं ये 8 है, क्या ले रहा हूँ मैं? 8 ले रहा हूँ। 8 आपका होल नंबर है और इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 10 को, तो 10 भी आपका क्या है? समझो Whole कि number. Whole number. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मैं इसे ब्रैकेट में ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? ब्रैकेट में। ठीक है। Bracket. मैं फर्स्ट क्या लिया? 8। तो 8 एक्चुअली क्या है? ये आपका होल नंबर है। ये क्या है आपका? होल Whole नंबर number. है ना? Whole और इसमें ये जो number. और एक दूसरा मैं नंबर ले रहा हूँ 10। 10 भी आपका ये क्या भी है? whole number. होल नंबर है। Whole number. But और answer is not whole number. पूछा बेटा, अब इसमें ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कौन सा है? ये आपका सब्ट्रैक्शन का है। कौन सा है ये? Yes.